अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही सबको? यस। ठीक है जी, शुरू करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic for the discussion is the biology of the tooth movement. Now, in the biology of the tooth movement, basically we will discuss that how the orthodontic tooth movement occurs. That whenever we will apply the orthodontic forces, what changes occurs in the PDL and what changes occurs in the bone that helps in the tooth movement. Now, first of all, the periodontal and the bone responds to the normal function. Each tooth is attached to and separated from the adjacent alveolar bone by the PDL. Normally, PDL occupies 0.5 mm width all around the roots. Now, PDL space is taken up with the collagenous fiber bundles that constitute the ligamentous attachment. Two other major components of the ligament, they are the cellular element and the tissue fluid. They both play an important role in the normal function and in making the orthodontic tooth movement possible. So this is a normal structure in which the tooth is attached with the bone with the help of the PDL. Now, one thing is final over here that tooth movement can only be achieved if the PDL is normal. Suppose if PDL is not normal or PDL is missing, we cannot move the tooth even with the orthodontic force. Suppose if the PDL is missing, means the tooth is directly fused with the bone, तो वो क्या हो जाएगी, एंकाइलोसिस हो जाएगी. एंड एंकाइलोस टूथ को हम ऑर्थोडोंटिक फोर्स के साथ जो है वो मूव नहीं कर सकते, मतलब विदाउट विद द ऑर्थोडोंटिक फोर्स जो एंकाइलोस टूथ होगा उसको मूव नहीं कर सकते. नंबर वन. नंबर टू, सपोज दिस पीडीएल इज कंप्रोमाइज्ड. सपोज इस कंडीशन में तो देखें नॉर्मल पीडीएल है. सपोज 50%, जैसे हम कहते हैं ना कि जी इस पेशेंट की ओरल हाइजीन जो पेरियो कंडीशन है वो काफी पुअर है, काफी बोन लॉस है, मतलब तो उस कंडीशन में क्या होगा, when the perio condition is poor and there is a bone resorption, vertical or the horizontal bone loss, तो उस कंडीशन में क्या होता है, we can move the the tooth but with a very minor force and very minimum tooth movement. उस कंडीशन में क्या होगा, एक तो हमें फोर्स भी बहुत कम लगाना होगा एंड जो आपका जो टूथ मूवमेंट होगी वो भी काफी हमें मिनिमम टूथ मूवमेंट करनी पड़ेगी. मींस जो हमारे ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट के गोल्स होंगे वो हम काफी उसमें minimum रखेंगे in patients with a poor periodontal condition. Okay, now what happens with the physiological response to the heavy pressure? If there is any heavy pressure on the tooth for less than 1 second, what will happen? The PDL fluid is incompressible, alveolar bone will bend and piezoelectric signals generate होंगे. अब ये क्या होते हैं piezoelectric signals, ये हम आगे 2 स्लाइडों के बाद पढ़ेंगे piezoelectric theory, तो उसमें आपको ये concept clear होगा. If that heavy pressure is continuous for 1 to 2 seconds, what will happen? PDL fluid will be expressed out, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि PDL में क्या होता है, मतलब नंबर वन. एंड
tooth moves within the PDL space. अब PDL space कितना होता है 0.5 mm. So if there is a heavy pressure and heavy pressure remain persistent for 1 to 2 seconds, the tooth will move within the PDL space. Now suppose if the pressure remain continue for 3 to 5 seconds, what will happen? PDL fluid will be squeezed out, tissues compressed, okay, and there will be an immediate pain if the pressure is there. So if there is any heavy pressure for 1 to 2 seconds, तो वो bearable होगा, but after 1 to 2 seconds definitely there will be a pain, and after the pain वो immediately जो भी हम force लगाते हैं तो वो उसको relieve कर देते हैं. और after 3 to 5 seconds वो जो पेन है वो क्यों होता है? द रीजन इज दैट जो पीडीएल का जो फ्लूइड होता है वो स्क्वीज्ड आउट होता है और जो आपके नर्व्स होती है वो प्रेस होती है, एंड क्योंकि वो जो टूथ होता है वो कंप्लीटली मूव कर चुका होता है विद इन द पीडीएल इन एनी डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में उसने उसकी मूवमेंट हुई होती है जो नॉर्मल 0.5 मिलीमीटर का स्पेस होता है. रोल ऑफ द पीडीएल इन द इरप्शन एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ द टीथ. The phenomena of the tooth eruption make it explain that forces generated within the PDL itself can produce the tooth movement. The eruption mechanism appears to depend on the metabolic events within the PDL. A tooth whose antagonist has been extracted will often begin to erupt again after many years of apparent quiescence. अच्छा, इसको समझने से एक ये चीज क्लियर कर लें कि सपोज हम जो कहते हैं ना कि mesial drifting of the teeth and over eruption of the teeth. Now why there is an over eruption of the teeth? Whenever we do the extraction of the tooth, तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जी ये आपने जो सपोज लोअर फर्स्ट मोलर की हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जी ये आप इसको रिप्लेस करा लेंगे. मतलब क्यों रिप्लेस करा लेंगे? नहीं तो ऊपर वाले दांत जो है वो नीचे आ जाएंगे. मतलब why there is an over eruption of the teeth? That over eruption is because of the metabolic activity of the PDL, क्योंकि वो PDL की metabolic activity है जो कि tooth की eruption कराते हैं. Now suppose अगर if the tooth is ankylosed तो क्या वो over erupt करेगा? वो नहीं करेगा. Why? Because there is no PDL, so no metabolic activity of the PDL there. Why? What is active stabilization? Teeth are stable in the presence of unbalanced pressure that would otherwise cause the tooth movement. ये एक्टिव स्टेबलाइजेशन के यूजुअली एक एमसीक्यूज आता है आपके एग्जाम में और ये डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज एक्टिव स्टेबलाइजेशन. तो कैंडिडेट्स कंफ्यूज करते हैं एक्टिव स्टेबलाइजेशन को विद द रिटेंशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज द एक्टिव स्टेबलाइजेशन? एक्टिव स्टेबलाइजेशन इज बेसिकली the metabolic activity of the PDL that maintains the position of the tooth. नाउ सपोज अगर आप ये देखिए मैं जो लोअर इंसाइजर्स हैं, लोअर इंसाइजर पे जो लिप का प्रेशर है दैट इज 5 ग्राम एंड जो लोअर इंसाइजर पे टंग का प्रेशर है दैट इज द 10 ग्राम. हम क्या कहते हैं वो जो न्यूट्रल जोन होती है ना, कहते हैं कि ये न्यूट्रल जोन है जहाँ पे लेबियल एंड लिंगुअल प्रेशर जो है वो कैंसिल आउट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे टीथ स्टेबल होते हैं. बट डेफिनेटली जो टंग का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लोअर लिप. तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो सेम तो नहीं है. मतलब अब यहाँ पे 10 ग्राम फोर्स है, यहाँ पे 5 ग्राम फोर्स है. इवन आफ्टर दैट जो आपके लोअर इंसाइजर्स हैं वो स्टेबल होते हैं इन द न्यूट्रल जोन. व्हाई दे आर स्टेबल? दैट इज बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द पीडीएल. इट मींस पीडीएल कैन रेजिस्ट a pressure or force of approximately 5 ग्राम. क्योंकि यहाँ पे 5 ग्राम फोर्स है लेबियली, लिंगुअली 10 ग्राम फोर्स है. कैंसिल आउट करेंगे तो जो रिमेनिंग आपका जो लिंगुअल फोर्स होगा वो 5 ग्राम होगा. और वो 5 ग्राम फोर्स कौन रेजिस्ट कर रहा है? पीडीएल रेजिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये टीथ मूव नहीं कर रहे और टीथ स्टेबल रह रहे हैं. ठीक है. तो whenever we will apply the orthodontic force, तो वो ऑर्थोडोंटिक जो फोर्स होगा वो हमेशा 5 ग्राम से ज्यादा होगा. जो मिनिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स होगा फॉर एनी टाइप ऑफ द टूथ मूवमेंट वो 10 ग्राम होगा. आगे आएगा कि हर टाइप की जो टूथ मूवमेंट है उसके लिए कितना फोर्स चाहिए, बट मिनिमम इट इज 10 ग्राम फोर्स. व्हाई 10 ग्राम? बिकॉज 5 ग्राम फोर्स है वो तो रेजिस्ट कर जाता है बाय द पीडीएल. मतलब अगर
हम सपोज 5-6 ग्राम प्रेशर देंगे टूथ पे, तो टूथ की मूवमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज पीडीएल उसको रेजिस्ट करेगा और पीडीएल इतने फोर्स पे टूथ को मूव नहीं होने देगा। So this is the active stabilization. Active stabilization means teeth are stable in the presence of the unbalanced pressure that would otherwise cause the tooth movement. And why teeth are stable? Because of the metabolic activity of the PDL. Okay. The other things that we will discuss in the biology of the tooth movement, that is biology control of the tooth movement. जो tooth movement की theories क्या होती हैं? Then what is the effect of force magnitude? What is the effect of the light pressure? What is the effect of the heavy pressure? जो usually वो कैंडिडेट जिन्हें कभी ब्रेसेस लगवाए हुए होंगे, इवन पेशेंट हमें कहते हैं कि जी मुझे जब आप आर्थोडोंटिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो मुझे इतना प्रेशर फील नहीं होता होगा, तो आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें आप। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट प्रेशर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हेवी प्रेशर। जो हमेशा आर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट होती है, वो जो आइडियल टूथ मूवमेंट होगी वो लाइट प्रेशर के साथ होती है, हेवी प्रेशर के साथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो इसमें आगे करेंगे डिस्कस। Effect of force distribution in the type of the tooth movement. So different types of the tooth movement are there: tipping movement, bodily movement, rotations, intrusion, extrusion, and torque movement. So how the force are distributed on the PDL? कैसे distribute होता है? Effect of force duration and the decay, and then the drug effect on the response to the orthodontic force. कि medicine का क्या effect होता है on the orthodontic force? Okay, the theories of tooth movement, there are basically the two theories, the bioelectric theory and the pressure tension theory. अब ये कहते हैं कि जो बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी होती है वो जस्ट इनिशियल जो स्टार्ट ऑफ द टूथ मूवमेंट होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी, एंड आफ्टर दैट जो कंटिन्यूअस टूथ मूवमेंट होती है दैट इज बाय द प्रेशर टेंशन थ्योरी. What is the bioelectric theory? That whenever we will apply a pressure on the tooth, there will be the generation of the electric signals. How the electric signals, ये कैसे piezoelectric theory activate होती है? There will be the deformation in the crystal structure. Electrons will move from one part of the lattice to the other and they will generate the electric signals. Electric signals कैसे generate होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एक शेल में से मूव करते हैं दूसरे शेल में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं. When these electric signals will generate, they will cause the bone metabolism. Bone metabolism means they will cause the activation of the osteoblast and the osteoclast, ताकि एक तरफ से बोन की रिजॉर्प्शन हो, दूसरी तरफ से बोन की जो है वो डिपोजिशन हो, जिसकी वजह से टूथ मूवमेंट होगी. Electric signals will cause the bone metabolism and bone metabolism will lead to the tooth movement. Now, electric signals are generated at a particular pressure or particular force level. Suppose at day 1 जब हमने pressure दिया for the tooth movement, वो pressure था for example 50 gram. At a 50 gram level, there was generation of the electric signals. Means जो electrons थे वो अपने शेल से निकल के दूसरे शेल में गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो जनरेट हुए. बट डेफिनेटली वो जो आपका प्रेशर है वो कभी भी प्रेशर 100 ग्राम प्रेशर या 50 ग्राम प्रेशर डे 1 से लेकर टिल द एंड ऑफ द एक्टिवेशन, महीने के एंड तक वो प्रेशर कंटिन्यू नहीं रहता. क्या होता है? प्रेशर जो है वो कम होता रहता है विद द टाइम. ठीक है. सो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट हुए थे 50 ग्राम पे, इलेक्ट्रॉन्स की नेचर क्या होती है कि वो हमेशा अपने ओरिजिनल शेल में वापस जाते हैं. मींस 50 ग्राम से जैसे ही प्रेशर कम होगा, सपोज 50 ग्राम से प्रेशर कम होके 49 और 48 पे जब फोर्स पहुंचेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो सिग्नल्स होंगे, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है वो कम हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे. क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि जिस फोर्स लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए थे वो फोर्स लेवल मेंटेन ही नहीं रहा. इसी वजह से बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी आप कह सकते हैं कि फेल हो गई. या बाद में ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी is effective only in the start of the tooth movement.
कि अगर टूथ मूवमेंट को जो स्टार्ट मिलती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी। अच्छा, उसके बाद क्या होती है दूसरी जो थ्योरी है दैट इज द प्रेशर टेंशन थ्योरी। दिस इज द मोस्ट एप्लीकेबल एंड मोस्ट इफेक्टिव थ्योरी। According to the pressure tension theory, that whenever we will apply a pressure on the tooth, there will be the generation of the two zones, pressure zone and the tension zone. Okay. Now suppose this is the tooth and हमने इसको जो है वो राइट साइड पे मूव करना है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर हमने इसको मूव करना है तो हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस साइड से प्रेशर आएगा, इस साइड से प्रेशर आएगा और इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो व्हाट विल हैपन, जो जिस डायरेक्शन में टूथ मूव करेगा वहां पे क्या होगा, प्रेशर जोन जनरेट होगी। तो यहाँ पे जो होगा प्रेशर जोन क्रिएट होगी। ठीक है, प्रेशर जोन कैसे होगा कि ये पीडीएल कंप्रेस होंगे, मतलब क्योंकि यहाँ से फोर्स आ रहा है तो डेफिनेटली जब ये फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो जो पीडीएल होगा वो कंप्रेस होगा। जो ये कंप्रेस होगा तो यहाँ पर प्रेशर जोन क्रिएट होगी। दूसरी साइड पे क्या होगा, इस तरफ टेंशन जोन क्रिएट होगी। टेंशन का मतलब है कि स्ट्रेच होंगे, मतलब डेफिनेटली क्योंकि पीडीएल दोनों तरफ अटैच्ड है विद द टूथ एंड द बोन। इफ द पीडीएल विल कंप्रेस ऑन द वन साइड तो दूसरी साइड पे क्या होगा, पीडीएल स्ट्रेच होंगे आप सब। तो देयर विल बी द जनरेशन ऑफ द टेंशन जोन। तो ये समझ आप रख लें कि जो प्रेशर जोन होगी दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द टूथ मूवमेंट एंड टेंशन जोन जो होगा दैट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द टूथ मूवमेंट। मतलब आप सपोज करें कि एक टूथ को जो है वो मूव कर रहे हैं मीजियल साइड पे एंड आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द डिस्टल साइड। तो जो मीजियल साइड होगी वहां पर प्रेशर जोन होगी और जो टेंशन साइड होगी, जो डिस्टल साइड होगी वहां पर टेंशन क्रिएट होगी। अच्छा, अब प्रेशर जोन में क्या होता है, पीडीएल कंप्रेस होंगे। whenever there is a compression of the PDL, जो blood vessels होंगे वो भी compress होंगे। when there is a blood vessels compress तो क्या होगा, blood flow decrease होगा। मतलब on the tension side PDL stretch, blood vessels dilate होंगी and there will be increase in the blood flow. Okay, whenever there is a creation of the pressure in the tension zone, they will cause alteration or the changes in the blood flow। जैसे हम पहले यहाँ कह चुके हैं कि जहाँ प्रेशर साइड होगा वहाँ ब्लड फ्लो कम होगा, on the tension side there will be increase in the blood flow। Change in the blood flow will cause the release of the chemical messengers and these chemical messengers will cause the cellular changes and that will lead to the tooth movement। तो ये जो प्रेशर टेंशन थ्योरी थी ये काफी एक्सेप्टेबल है कि whenever we will apply the pressure there will be definitely the change in the blood flow। वो जो ब्लड फ्लो में चेंज हो रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से सेलुलर चेंजेस हो रही हैं एंड टूथ मूवमेंट हो रही है। तो पीजो इलेक्ट्रिक थ्योरी जैसे मैंने पहले कहा कि इट ओनली वर्क्स इनिशियली, जो स्टार्ट ऑफ द टूथ मूवमेंट होती है उसमें आपका डेफिनेटली प्रेशर टेंशन थ्योरी भी होती है, बट पीजो इलेक्ट्रिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो उस स्टेज तक तो एक्सेप्टेबल है, बट कंटिन्यूस जो टूथ मूवमेंट है वो उसमें पीजो इलेक्ट्रिक थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। देन प्रेशर टेंशन थ्योरी वर्क्स। So these are the two theories of the tooth movement, pressure tension theory and the piezoelectric theory। उससे पहले जो हमने पढ़ा definition of the active stabilization। Now effect of the force magnitude, कि जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन द टूथ मूवमेंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट प्रेशर and the effect of the heavy pressure। तो there is a difference in both। तो हम जब ये डिस्कस करेंगे तो लाइट प्रेशर एंड द हैवी प्रेशर, देन वी विल कम टू नो कि ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है। मतलब ओके, विद द लाइट प्रेशर व्हेन लाइट बट प्रोलॉन्ग फोर्स इज अप्लाइड टू अ टूथ, blood flow through the partially compressed PDL decreases as soon as fluids are expressed from the PDL space and the tooth moves in its sockets in a few seconds। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि whenever we will apply the pressure on the tooth, तो टूथ क्या करेगा, विद इन द सॉकेट मूव करेगा। जो पीडीएल का जो एरिया है 0.5 mm उसमें मूव करेगा, नंबर वन।
and there will be the generation of the pressure zone in the tension zone. और प्रेशर जोन में क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप ये देखें कि सपोज करें कि ये पीडीएल है आपके, ठीक है, यहाँ से जब आप प्रेशर दे रहे हैं तो ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो कंप्रेस होंगे। जब ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगे तो डेफिनेटली ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा। मतलब okay, within a few hours at most, the resulting change in the chemical environment produce a different pattern of cellular activity. Suppose if the light pressure is continuous for the few hours, तो वो few hours जब कंटिन्यू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, there will be chemical environment जो है वो वहाँ पे चेंज होगा, cellular activity differentiation होगी। तो क्या होगा, there will be the increased level of cyclic AMP, the second messenger for many important cellular functions, including differentiation, appears after about 4 hours of sustained pressure. ये आप क्वेश्चन लिख लें, फिर बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये शाहफराज जो है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप क्वेश्चन बेटा लिख लें, एट द एंड जो है ये हम एक दो स्लाइड खत्म करें फिर डिस्कस कर लेते हैं। So if we apply a continuous pressure, so there will be a change in the chemical environment. जो पहला चेंज होगा वो क्या होगा कि साइक्लिक एएमपी रिलीज होगा। मतलब अब साइक्लिक एएमपी का फंक्शन क्या होता है कि ये सेलुलर डिफरेंशिएशन कराता है, मींस डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन द ऑस्टियोक्लास्ट को वहां रिलीज कराएगा एंड ऑस्टियोब्लास्ट को डिफरेंशिएट करेगा। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट इन द ऑस्टियोब्लास्ट, कि जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो बोन की रिजॉर्प्शन करेगा। डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में हमने टूथ की मूवमेंट करानी है तो वहां पे आपका टूथ मूव करेगा, मतलब तो वहां पे बोन रिजॉर्प्शन होगी एंड टूथ मूव करेगा। जब टूथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा तो दूसरी साइड पे क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी ताकि बोन फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो जाए। आप ये कह सकते हैं कि ऑन द प्रेशर साइड देयर विल बी द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ऑन द टेंशन साइड देयर विल बी द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। Now, what is the significance of the cyclic AMP with the orthodontic force? ये removable appliance के साथ होता है। मतलब this amount of time to produce a response correlate rather well within the human response to a removable appliance. If a removable appliance is worn less than 4 to 6 hours per day, it will produce no orthodontic effect. हमने पीछे कहा कि साइक्लिक एएमपी इंपॉर्टेंट होता है। नंबर वन, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो हेल्प करता है सेलुलर डिफरेंशिएशन। और सेलुलर डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेल्स आएंगे तो ऑस्टियोक्लास्टिक एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी, तो जाहिर बात है बोन की रिजॉर्प्शन एंड बोन की डिपोजिशन होगी। अब साइक्लिक एएमपी कब रिलीज होगा, ठीक है, इफ देयर इज एन कंटिन्यूअस प्रेशर फॉर द 4 आवर्स, अगर 4 घंटे तक कंटिन्यूअस प्रेशर होगा टूथ पे तब जाके साइक्लिक एएमपी रिलीज होगा। अब नाउ इन द फिक्स्ड अप्लायंसेस, व्हाट हैपेंस इन द फिक्स्ड अप्लायंसेस, बिकॉज़ फिक्स्ड अप्लायंसेस दे आर फिक्स्ड इन द ऑन द टूथ, उस पे कंटिन्यूअस प्रेशर होता है, पेशेंट उसको अप्लायंस को रिमूव नहीं कर सकता, तो साइक्लिक एएमपी को रिलीज करना या इस लेवल पे पहुंचना डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट हैपेंस इन द रिमूवेबल अप्लायंसेस, अच्छा, अब रिमूवेबल अप्लायंस जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि मिनिमम आपने 10 से 12 घंटे ये अप्लायंस यूज करना है, मतलब 10 to 12 आवर्स आपने मिनिमम यूज करना है। नाउ सपोज अगर एक पेशेंट जब वो अप्लायंस को यूज करता है, 2 घंटे के लिए यूज करता है, फिर 1 घंटे के लिए रिमूव कर ले, 2 घंटे के लिए यूज कर ले, फिर 1 घंटे के लिए रिमूव कर ले, 2 घंटे यूज करे, तो क्या आप सपोज करें सुबह 8 बजे से शुरू किया रात को 12 बजे तक, हर 2 घंटे बाद वो 1 घंटे के लिए रिमूव करता गया, टोटल उसने 12 घंटों में तकरीबन 6-7 घंटे अप्लायंस यूज कर लिया, ठीक है। बट क्या है कि वो जो लेवल जो अचीव करना है कि साइक्लिक एएमपी रिलीज हो, वो लेवल अचीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कंटिन्यूअस वेयरिंग ऑफ द 4 आवर इज इंपॉर्टेंट। तो हम जब भी पेशेंट विद द रिमूवेबल अप्लायंस जब हम पेशेंट्स को देंगे उसको इंस्ट्रक्शन हम यही देंगे कि आप ये अप्लायंस जो है एक दिन में 10 से 12 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम कंटिन्यूअस वेयरिंग ऑफ 5 to 6 आवर्स। इसमें डेफिनेटली 4 आवर्स लिखा हुआ है, तो आप जब पेशेंट को कहेंगे कि जी मिनिमम कंटिन्यूअस वेयरिंग ऑफ 5 to 6 आवर्स, क्यों कंटिन्यूअस वेयर करें, ताकि साइक्लिक एएमपी रिलीज हो सके।
क्योंकि मेन फंक्शन तो है ही साइक्लिक एएमपी का। जब साइक्लिक एएमपी रिलीज होंगे तो आपका आगे कहानी चलेगी यहाँ। Okay. If removable appliance is worn less than 4 to 6 hours per day, it will produce no orthodontic effects. Above this duration threshold, tooth movement does occur. Okay. Prostaglandin and interleukin 1 beta level increase within the PDL within a short time after the application of pressure. And it now seems clear that prostaglandin E is also an important mediator of the cellular response. For a tooth to move, osteoclast must be found so that they can remove bone from the area adjacent to the compressed part of the PDL. And osteoblasts also are needed to form the new bone on the tension side and remodel the resolved areas of the pressure side. Prostaglandin E has the interesting property of stimulating both osteoclast and osteoblastic, making it particularly suitable as a mediator of the tooth movement. यहाँ पे ये कि if parathyroid hormone is injected, osteoclast can be induced in only a few hours, but the response is much slower when mechanical deformation of the PDL is the stimulus, and it can be up to 48 hours before the first osteoclast appear within and adjacent to the compressed PDL. Now, whenever we will apply the pressure, तो with the orthodontic pressure के साथ क्या होगा कि जो osteoclastic activity, जो bone resorption की activity start होगी with a light pressure, it takes approximately 48 hours. ठीक है, तकरीबन 2 दिन required होते हैं कि osteoclastic activity शुरू हो और tooth movement जो है वो start होना शुरू हो जाए. Now in certain conditions, अगर suppose करें कि हमें tooth movement जो है वो rapid करानी है, हमें tooth movement जल्दी चाहिए, उसके लिए ये कि parathyroid हार्मोन की जो इंजेक्शंस हैं वो पीडीएल में आप इंजेक्ट करते हैं मतलब, ठीक है ना, इंट्रा लिगामेंटस हम वो इंजेक्शन देंगे तो उससे क्या होगा विद इन फ्यू आवर्स वहाँ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है मतलब. बट डेफिनेटली ये पैराथायराइड हार्मोन इंजेक्शंस एक तो पेनफुल होती हैं, दूसरा इतना कभी भी मतलब रूटीनली नहीं यूज होती कि हमें कोई इतनी रिक्वायर्ड हो कि हम पैराथायराइड हार्मोन इंजेक्शंस करें लोकली और वहाँ टूथ मूवमेंट एक्सपेडाइट करें. बिकॉज अगर टूथ मूवमेंट आप एक्सपेडाइट करना चाह रहे हैं तो उसके दूसरे भी डिफरेंट मैकेनिक्स होते हैं जिससे हम जो है वो टूथ मूवमेंट एक्सपेडाइट कर सकते हैं. ओके, these cells attack the adjacent lamina dura, जो osteoclast कहाँ अटैक करेंगे, removing bone in the process of the frontal resorption, and tooth movement begins soon thereafter. Osteoblasts form bone on the tension side and begin the remodeling activity on the pressure side. ये फ्लो चार्ट है, अगर आप इस फ्लो चार्ट को 2-3 मरतबा देखेंगे तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि whenever we will apply the light pressure for less than 1 second, piezoelectric theory effective होगी. If the force is continuous for 1 to 2 seconds, PDL fluid will be expressed and tooth moves within the PDL. If the force is light pressure is continue for 3 to 5 seconds, there will be the generation of the pressure tension zone. After the few minutes, blood flow will be altered. Definitely, on the pressure side, blood flow कम हो जाएगा. On the tension side, blood flow क्या है वो increase हो जाएगा. Oxygen tension begins to change. Definitely, जब blood flow कम होगा तो वहाँ पे oxygen changes होंगे, मतलब prostaglandin E and cytokines वहाँ release होना शुरू हो जाएंगे. After few hours, metabolic changes occur होंगे. After 4 hours, क्या होगा? Increased cyclic AMP and cellular differentiation. Okay. 4 घंटे बाद साइक्लिक एएमपी रिलीज होगा एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन होगा. आफ्टर 2 days, आफ्टर 48 hours, टूथ मूवमेंट स्टार्ट, ओस्टियोक्लास्टिक एंड ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई. तो इसमें जो चीजें याद रखने की हैं विद द लाइट प्रेशर, 2 चीजें याद रखें. नंबर 1, विद द लाइट प्रेशर, light continuous pressure, after 4 hours cyclic AMP will release. Cyclic AMP will help in the cellular differentiation. With the light pressure, tooth movement will start after the 2 days. After 48 hours आपकी जो है वो tooth movement start हो जाता है.
नंबर 2, जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखने की है वो ये है कि विद द लाइट प्रेशर देयर इज एन ए फ्रंटल रिजॉर्प्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिजॉर्प्शन, फ्रंटल रिजॉर्प्शन एंड अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन. तो लाइट प्रेशर के साथ क्या होगा, फ्रंटल रिजॉर्प्शन होगी. अच्छा, अब फ्रंटल रिजॉर्प्शन क्या होती है, नाउ सपोज दिस इज इन ट्रूथ. ठीक है, अब यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमने मूवमेंट करानी है. ये पीडीएल कंप्रेस हो जाएंगे यहाँ पे. जब ये पीडीएल कंप्रेस होंगे, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा. आफ्टर 4 आवर्स साइक्लिक एएमपी रिलीज होंगे, सेलुलर डिफरेंशिएशन होगी एंड ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे. जब ऑस्टियोक्लास्ट अपीयर होंगे तो क्या होंगे कि यहाँ से फ्रॉम द फ्रंट इसी एरिया से क्या होगा, बोन की रिजॉर्प्शन शुरू होगी. यहाँ से बोन रिजॉर्प्शन जो है वो स्लो स्लो बोन रिजॉर्प्शन शुरू होगी. अच्छा, जितनी बोन रिजॉर्प्शन होती जाएगी उतनी टूथ मूवमेंट यहाँ पे शुरू होगी. ठीक, ये इसको कहते हैं फ्रंटल रिजॉर्प्शन. दूसरी होती है अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन. वो हम जब हेवी प्रेशर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन. अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन में जो बोन की रिजॉर्प्शन होती है वो फ्रॉम अंडर साइड ऑफ द लेमिना डुरा. इसमें तो फ्रंट से हो रही थी, यहाँ से बोन रिजॉर्प्शन हो रही थी. सपोज 0.1 mm की बोन रिजॉर्प्शन होगी तो 0.1 mm की टूथ मूवमेंट होगी. विद द हेवी प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पे फ्रंट से रिजॉर्प्शन नहीं होती, बैक साइड से रिजॉर्प्शन होती है. जब अंडर साइड से रिजॉर्प्शन होगी तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बोन थिकनेस जब रिमूव होगी उसके बाद फिर टूथ मूवमेंट होगी. So this is a difference between the frontal resorption and the undermining resorption. With the light pressure, जो important चीजें हैं, number 1, tooth movement will occur after the 2 days. Number 2, जो release of cyclic AMP होता है वो after 4 hours होता है. उसका important ये है कि जब भी हम remove appliance patients को देंगे तो हम उसको कहेंगे कि minimally वो appliance continuous जो wearing है वो 4 to 6 hours होनी चाहिए. And third, with the light pressure there will be a frontal resorption. इसमें अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन नहीं होगी, फ्रंटल रिजॉर्प्शन होगी. यहाँ पे जब ऑस्टियोक्लास्ट होंगे तो यहाँ पे बोन की रिजॉर्प्शन होगी और दूसरी साइड जो टेंशन साइड है वहाँ पे क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट होंगे और बोन की डिपोजिशन होगी. तो यहाँ पे डिपोजिशन क्यों होती है. अच्छा, अब सपोज करें कि ये इस तरफ टूथ मूव करता हुआ जाएगा तो जहाँ पे जो स्पेस होगा वो स्पेस इंक्रीज होता जाएगा, स्पेस बिटवीन द टूथ एंड द बोन, जो पीडीएल के एरिया जो कि नॉर्मल 0.5 होता है. ठीक है, तो जैसे ये टूथ मूव करेगा तो यहाँ पे बोन की फॉर्मेशन होती जाएगी. यहाँ पे बोन की फॉर्मेशन होती जाएगी ताकि जो बोन की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे. अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है. अब सपोज करें कि ये जो बोन है जिस डायरेक्शन में हम टूथ मूव कर रहे हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली आप कह दें कि 5 मिलीमीटर है और जो दूसरी साइड पे जो बोन है वो भी 5 मिलीमीटर है. नाउ वी आर मूविंग द टूथ इन एक डायरेक्शन में. जब हम टूथ को मूव कर रहे हैं डिस्टली तो हमने 3 मिलीमीटर मूवमेंट की. तो जिस डायरेक्शन में टूथ को मूव कर रहे हैं वहां पे तो 3 मिलीमीटर क्या होगा, बोन रिड्यूस हो जाएगी. दूसरी साइड पे 3 मिलीमीटर बोन जो है वो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी. बट ऐसे नहीं होता. मतलब देयर देने जब आप वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे मैडम सुबह के वो टॉपिक से, उसमें वो आपको एक चीज पढ़ाएंगी, डिस्प्लेसमेंट, बोन डिस्प्लेसमेंट होती है. उसमें क्या होता है कि सपोज इस बोन में यहाँ पे जो रिजॉर्प्शन हो रही है इस टूथ को मूव करने के लिए, ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है कि इस तरफ से अगर बोन की रिजॉर्प्शन हो रही है तो दूसरी साइड से क्या होगा, बोन की डिपोजिशन होगी ताकि वो जो एक्चुअल बोन है उस एक्चुअल बोन की थिकनेस मेंटेन रहे. इस साइड पे क्या होगा, जब यहाँ पे बोन की डिपोजिशन हो रही है तो दूसरी साइड पे बोन की रिजॉर्प्शन हो रही होती है ताकि जो बोन की एक्चुअल थिकनेस है वो मेंटेन रहे. ठीक है, तो इसको कहते हैं बोन डिस्प्लेसमेंट. ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूजुअली आपको आएगा. तो ये हमने पढ़ा विद द लाइट प्रेशर. ओके, ये लास्ट फ्यू स्लाइड्स है विद द हेवी प्रेशर. ठीक है, द हेवियर द सस्टेन प्रेशर. अच्छा, हेवियर प्रेशर के साथ में आपको पहले फ्लो चार्ट दिखा दूं. ओके,
इन द हेवी प्रेशर इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर लेस देन 1 सेकेंड, वही पीजोइलेक्ट्रिक थ्योरी होगी। फॉर 1 to 2 सेकेंड पीडीएल फ्लूइड एक्सप्रेसेस होंगे। फॉर 3 to 5 सेकेंड ब्लड वेसल्स विद इन द पीडीएल अक्लूड ऑन द प्रेशर साइड। क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हेवी प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स टोटली कंप्रेस हो जाएंगे। जब ब्लड वेसल्स टोटली कंप्रेस हो जाएंगी, जब एक जगह पे ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि वहां पर नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, जब ब्लड फ्लो कट हो जाएगा ऑन द कंप्रेस्ड साइड पे, तो क्या होगा, वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू आवर्स देयर विल बी सेल डेथ ऑन द कंप्रेस्ड साइड। तो वो जो नेक्रोटिक एरिया होता है उसको कहते हैं हाइलिनाइजेशन या हाइलिनाइज्ड एरिया।